Hello everybody. Today I will discuss expenditure method to measure national income. It is the third method. In my previous videos already I have discussed income method and value added method. It is the third and last method. So national income calculate करने के लिए 3 methods है, income method, value added method and expenditure method. 2 मेथड्स पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरा प्रीवियस वीडियोस में. आप मेरा प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है थ्रू इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सो टुडे आई विल डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड. ऑल्टरनेट नेम इज इनकम डिस्पोजल मेथड और ऑल्सो डिस्पोजिशन मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड का अल्टरनेट नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड और डिस्पोजिशन मेथड. ओके, सो बिफोर discussing the different steps to calculate national income through expenditure method, just I want to discuss some key points. स्टेप्स को डिस्कस करने पे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ. ओके, First one, private final consumption expenditure. Symbolically, it is called PFCE, private final consumption expenditure. इसमें private final consumption expenditure में जो हाउसहोल्ड सेक्टर कंजप्शन गुड्स में जो खर्च करता है हम उसको लेंगे, और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड. प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे विवेकानंद मिशन यानी साई बाबा ट्रस्ट और एनी अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, freely they are providing educational facilities and health facilities to the household sector. So in private final consumption expenditure, so two things you consider: expenditure incurred by the household sector on consumption goods, and second one, expenditure incurred by the private non-profit making institutions on consumption goods for serving households. So दो चीज़ आपको यहाँ पर लेना है, दो चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है. So you see, private final expenditure definition, it refers to the expenditure incurred by households and private non-profit institutions serving households on all type of consumer goods, that is to say durable, semi-durable, non-durable and services. So हमको पता है जो कंज्यूमर गुड्स है वो 4 प्रकार है. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, those goods can be used for considerable period of time. Example, household appliances, air conditioner, washing machine, LED, cooler. Okay, these are consumer durable goods.
Similarly, second type of consumption goods or consumer goods, it is semi ड्यूरेबल. जिन वस्तुओं को हम एक साल तक यूज कर सकते हैं, दोज कंज्यूमर गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. लिमिटेड मीन्स अराउंड 1 year. एग्जाम्पल क्लॉथेस शूज. जो क्लॉथेस शूज है उसको हम एक साल तक यूज कर सकते हैं, वो है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. थर्ड टाइप है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. दोज गुड्स कैन बी यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन. एक ही बार कंजप्शन पर्पज में यूज करेंगे. एग्जाम्पल फूड आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट, ब्रेड. इट मीन्स द कंज्यूमर कैन यूज these goods in single act of consumption. Okay, this type of goods having no time span, a non-durable consumer goods. Last one, services. Services means those people serving household sector. Suppose for example maid servant doing all the works of the home. Family doctor is there, family teacher is there, family banker is there. They are serving households. So in private final consumption expenditure, okay, हमको कंजप्शन गुड्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है. सो वन साइड में एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर on consumption goods to satisfy their needs. जो कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स, उसका डेफिनेशन यही है, दोज गुड्स satisfy the wants of the consumers or the desires of the consumers directly. Clear? Consumption goods or consumer goods are those goods which directly satisfy the needs of the consumers. जो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली घर में जो जो चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड्स है, जो अप्लायंसेस सब है, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एलईडी, एयर कंडीशनर, सब ड्यूरेबल से. सेमी ड्यूरेबल क्लॉथेस शूज है, और सिमिलरली नॉन ड्यूरेबल जो फूड आइटम्स है जिसको हम एक बार कंज्यूम करते हैं, और जो सर्विसेज है. सर्विसेज में मैं बोला जो सर्विस रेंडर्ड बाय maid servant, also household sector availing service from the family doctor, availing service from the teacher, availing service from the engineer, availing service from the lawyer, availing service from the banker. ये सबको लेना है. ओके, और इसमें और एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स. इन आवर कंट्री so many charitable institutions are there. Their main intention is not profit. बहुत कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उनका मेन मोटिव वेलफेयर है. ओके, सो एग्जाम्पल प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, जो डिफरेंट मिशंस, जैसे विवेकानंद मिशन, चैरिटेबल institute like Sai Baba Trust. Okay, so these type of charitable institutions, their aim is not profit. Their main intention is not profit. Their intention is free service to the household sector, providing good service to the weaker sections of the society. Clear? जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़,
ये सब मुफ्त में हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं। तो इन्हीं जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कंजप्शन गुड्स के ऊपर जो खर्च करते हैं वो भी ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा, पीएफसी में आएगा। सो दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर and consumption expenditure made by the private non-profit institutions serving households। मैं डिस्कस कर चुका हूँ different types of consumer goods। So just to remember definition of PFC, it refers to expenditure incurred by the household sector on consumption goods and private non-profit institutions। Similarly, expenditure incurred by private non-profit institutions on consumption goods for serving household sector। Clear? So general definition, it refers to expenditure incurred by households and private non-profit institutions serving households on all types of consumer goods, that is durable, semi-durable, non-durable and services। Clear? So दो चीज़ हमको ध्यान देना है, consumption expenditure of the household sector and consumption expenditure of the private non-profit institutions serving household sector। और बेसिकली वो जो खर्च करते हैं बोथ हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्च करते हैं उसी को लेना है। क्लियर? नेक्स्ट सी सर्विसेज में बहुत कुछ चीज़ है, जस्ट रिमेंबर सर्विसेज में हाउस होल्ड सेक्टर में पेमेंट टू द मेड सर्वेंट। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर में मेड सर्वेंट काम करता है, मेड सर्वेंट डूइंग ऑल द वर्क्स इन होम, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, अरेंज द बुक्स ऑफ द चिल्ड्रन, सब काम करता है। तो उसको जो हम जो पेमेंट करते हैं वो पीएफसी में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। ट्यूशन फीस देते हैं। नाउ teachers guiding the students, basically teachers guiding the children in home, teachers guide करते हैं घर में बच्चों को, तो उनको ट्यूशन फीस देना पड़ता है। सो पेमेंट मेड टू देम, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है। स्कूल फीस ऑफ द चिल्ड्रन, हाउस होल्ड सेक्टर मेक पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, हाउस होल्ड सेक्टर जो स्कूल फीस बच्चों का देता है। नेक्स्ट वन, पेमेंट इन क्लिनिक्स फॉर ट्रीटमेंट। सपोज कोई फैमिली मेम्बर, एनी फैमिली मेम्बर सफरिंग इन एनी टाइप ऑफ डिजीज एंड वी गो टू द प्राइवेट क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट, फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड मेक पेमेंट, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। स्कूल बस फीस, ओके, जो हमारा बच्चे स्कूल जाते हैं बस में, वो बस फीस और ऑटो फीस वो देना पड़ता है, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट फॉर बस। जैसे जनरली प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली दे गो टू द ऑफिस, ओके, बाय यूजिंग बस रेगुलरली। और कभी जो हम बस ट्रैवल में जाते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इन केस ऑफ बस ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल एंड एयर ट्रैवल। बस ट्रैवल में, ट्रेन ट्रैवल में एंड एयर ट्रैवल में जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, हाउस होल्ड सेक्टर monthly make payment of insurance premium, monthly, quarterly, half yearly और yearly। लाइफ इंश्योरेंस जो है LIC है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है PLI। क्लियर? ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेगुलरली हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर मेक पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। पेमेंट टू द इंजीनियर्स फॉर रिपेयर ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस,
कभी कभी हमारा घर में जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, सपोज एलईडी है कि एयर कंडीशनर है कि वॉशिंग मशीन है कि रेफ्रिजरेटर है, उसमें कुछ ख़राब आएगा तो हम किसका हेल्प लेते हैं? सर्विस इंजीनियर्स का हेल्प लेते हैं, तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। ओके, सो ये सब सर्विसेज में आता है, इस सबको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना है। देन नेक्स्ट वन, सेम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में बोला जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है मगर उनका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, दोज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस their main intention is not profit, their main motive is not profit, only their main motive is to uplift the weaker sections of the society, providing good service to the debilited sections of the society. ओके, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, वेलफेयर है। वो सभी समय जो गरीब लोगों को अच्छा सेवा देते हैं, वो बेसिकली चिल्ड्रेन बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन, पुअर पीपल ऑल्सो गेटिंग फ्री मेडिकल फैसिलिटीज इन सम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ओके, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स। तो जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस लाइक विवेकानंद मिशन, साई बाबा ट्रस्ट में एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इनकर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सर्विंग हाउस होल्ड्स फ्रीली। कभी कभी उनका जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, रेसिडेंशियल स्कूल्स में वो SC/ST स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं। सो मेनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस दे आर हैविंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल बेसिकली schools and they enroll SC and ST students, okay, and providing free fooding and lodging facilities, free educational facilities to them. उनका हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैविंग हॉस्पिटल्स, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ओके, टू द पीपल। तो उसमें जो वो कंजप्शन गुड्स के ऊपर जो खर्च करते हैं वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर? सो जो PFC का फॉर्मूला है, जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो दोनों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना है। इट मीन्स इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, दोनों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों का लेना है। क्लियर? वी कंसिडर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो PFC का बाद जब आता है, इसमें ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स का एक्सपेंडिचर लेना है। इन प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, वो हमारी का रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ आवर नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इन अब्रोड। कभी कभी क्या होता है, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स वो फॉरेन विजिट करते हैं एज ए टूरिस्ट कि फॉर एनी अदर पर्पज, दे गो टू द फॉरेन कंट्री, दे गो टू अब्रोड, वहाँ पर जाके वो पैसा खर्च करते हैं, किसके ऊपर? कंजप्शन गुड्स के ऊपर। क्लियर? तो वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। जस्ट यू रिमेंबर, ये जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं, बेसिकली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर दे मेक एक्सपेंडिचर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड क्या होता है? जब टूरिस्ट के आकार में वो जाते हैं, कभी टेम्पररी पीरियड के लिए हमारा जो हायर प्रोफेशनल पीपल है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, दे गो टू द अब्रोड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग एंड दे स्टे इन द फॉरेन कंट्री फॉर लेस देन 1 year। बेसिकली देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए वो जाते हैं। वो अब्रोड में जब कंजप्शन गुड्स के ऊपर, जो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज के ऊपर जो खर्च करते हैं,
ओके, उसी को ही लेना है। तो PFC includes expenditure incurred by non-normal residents, whether in the domestic territory or in abroad. But any expenditure incurred by non-residents and foreign visitors, जब नॉन रेसिडेंट्स का जो एक्सपेंडिचर है और जो फॉरेन विजिटर्स, सो मेनी फॉरेन पीपल दे आर कमिंग टू आवर कंट्री, ओके, as a tourist or for any other training like sports or academics or for treatment, and they are staying in the country for less than 1 year, ओके, वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स, जो हमारा रेसिडेंट नहीं है, एंड फॉरेन विजिटर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, हमारी मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट से वो जो खरीद रहे हैं कंजप्शन गुड्स, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा। सो इन दिस केस जस्ट यू रिमेंबर, PFC में द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रोड। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है अब्रोड से क्या है ना, बेसिकली आवर रेसिडेंट्स दे गो टू अब्रोड एज ए टूरिस्ट, दे गो टू अब्रोड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, like our doctors, teachers, lawyers, engineers, they go to the abroad for a temporary period of time for special training, and they stay in abroad for less than 1 year. Again they come back and render their efficient service and render their highly effective service to the people. Okay, so only you remember expenditure incurred by normal residents वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इन अब्रोड। हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कंजप्शन गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और अब्रोड में, मगर कोई जो नॉन रेसिडेंट्स है उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, व कोई फॉरेन विजिटर्स है उनका जो एक्सपेंडिचर हमारा मार्केट से होता है कंजप्शन गुड्स के ऊपर जो खर्च करते हैं, ओके, हमारी डोमेस्टिक मार्केट से, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सेम थिंग आई हैव रिटन। देन अनदर इंटरेस्टिंग वन, जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, इट मीन्स उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ओके, वहाँ पर वो जो लोगों को जो COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट मीन्स यू नो पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर्स, ओके, फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। जब कोई लोग काम करते हैं, जैसे हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में और चाहे प्राइवेट सेक्टर में हम हमारा फैक्टर सर्विस रेंडर करेंगे, तो उसका रिटर्न हमको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। वही कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें 3 चीज़ आता है, सैलरी इन कैश और सैलरी इन काइंड। काइंड में रेसिडेंशियल फ्री क्वार्टर फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज्ड मील, और थर्ड चीज़ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो हमारा ओनर है, जो मालिक है, वो हमारा सोशल सिक्योरिटी के लिए वो जो पेमेंट करता है, जैसे पेंशन ऑन रिटायरमेंट की, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर, हमारे लिए एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करता है, जो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जब एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करता है, ये सब चीज़ आता है, ओके। वैसे ही those people working in the non-profit institution serving households, and they receive salary in the form of cash, kind, and also contribution in the social security schemes, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। क्लियर? बट ओनली रेसिडेंट्स लेना है, नॉन रेसिडेंट्स नहीं। वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में काम करे वो हमारा रेसिडेंट्स है। जो हमारा टेरिटोरी के अंदर जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ओनली रेसिडेंट्स लोग काम करें, हमारे बेसिकली एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू आवर कंट्री एंड दे आर गेटिंग COE compensation of employees. Okay, so compensation of employees definition, it is the payment, factor payment made to the employees
by the employers for rendering productive services in return. जब हम हमारा प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं, प्रोडक्टिव सर्विस मीन्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, चाहे हमारा सर्विस से चाहे गुड्स प्रोड्यूस हो और यानी सर्विसेज जनरेट हो, उसके बदले में हमको जो सैलरी प्राप्त होता है वो COE है. तो COE पेड बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स इंक्लूडेड इन PFC. देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर, मैं बोल चुका हूँ उसको. जैसे जो हमारा रेसिडेंट्स वो फॉरेन टूर के लिए जाएंगे, वो ट्रेनिंग के लिए, एकेडमिक्स के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, ओके, और फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो लेस देन 1 ईयर स्टे करते हैं और वहाँ पर वो कंजप्शन गुड्स के ऊपर जो खर्च करेंगे वो PFC में इंक्लूड होगा, मैं बोल चुका हूँ. नेक्स्ट वन, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय प्रोड्यूसर. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. एक घर, हमारा हाउस को हम रेंट पर देंगे तब हमको मार्केट प्राइस के अनुसार रेंट मिलेगा, वो सिंपल रेंट है. मगर अभी हम किसी को रेंट में नहीं दिया, हम खुद रह रहे हैं हमारा घर में. ओके, इफ वी प्रोवाइड आवर हाउस टू अदर in the form of rent, it is rent. But now in this condition, in case of imputed rent, it means the owner occupy his own house. ओके, वो रेंट में देता है, उसको सपोज 5,000 मिलता, और अभी वो रेंट में नहीं दिया, वो खुद रह रहा है और वो वही 5,000 उसका वैल्यू है. ओके, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. उसका जो मार्केट वैल्यू है, जैसे हम किसी को रेंट में दे देते, वो हमको 5,000 देता, अभी हम किसी को रेंट में नहीं दिया, हम हमारा घर में रह रहे हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है. पहले मैं बोल चुका हूँ मेरा प्रीवियस वीडियो में, वो इंक्लूड होता है. और उसका जैसे मार्केट वैल्यू 5,000 है, जैसे हम किसको रेंट में देते तो 5,000 मिलता, अभी रेंट में नहीं दिया, हम उसमें रह रहे हैं, हमको उसको जो मार्केट वैल्यू है उसको लेना है, वही है इम्प्यूटेड रेंट. वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मैं बोला प्रोडक्शन के बाद, आफ्टर प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड मेथड, 3 पार्ट्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट इज़ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. प्रोडक्शन का कुछ पार्ट हमारा इट मीन्स प्रोड्यूसर्स खुद के पास रखता है फॉर सेल्फ कंजप्शन, स्व उपभोग के लिए. बेसिकली उसी आवर फार्मर्स, it means after production they want to keep certain part of the agricultural production with itself for self consumption, वो सो उपभोग के लिए रखते हैं, फिर उस बेचते हैं. ओके, अनदर पार्ट दे सेल, और जो बेचा नहीं जाएगा, दो क्वांटिटी ऑफ गुड्स अनसोल्ड, उसको वो स्टैक अप और एक्यूमुलेट करके रखते हैं. बेसिकली प्रोड्यूसर्स दे स्टैक अप और एक्यूमुलेट इन गुड डाउन. सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो प्रोडक्शन का एक पार्ट हम स्व उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए हमारे पास रखेंगे, उसका जो वैल्यू होगा, उसको हम बेचते तो उसका मार्केट वैल्यू होता है, उसको हम नहीं बेचेंगे, हमारे पास रखेंगे, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. तो इम्प्यूटेड रेंट तब होता है, जो इम्प्यूटेड लगता है वही, जब हम किसी को रेंट पर नहीं देंगे, हम हमारा घर को खुद यूज करेंगे. ओके, when we do not provide, it means we do not offer our house in the form of rent, it means we can use our own house, वो तब imputed लगता है, उसका भी वही मार्केट वैल्यू इंक्लूड होता है. और जब प्रोडक्शन को हम नहीं बेचेंगे, एक प्रोडक्शन का कुछ पार्ट हम खुद के पास रखेंगे, पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन वी वांट टू कीप विथ आवर सेल्फ फॉर सेल्फ कंजप्शन, उसका भी मार्केट वैल्यू होगा ना. हम जब बेचेंगे, जितने में बेचता, नहीं बेचेंगे, हमारे पास रखेंगे, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वही है इम्प्यूटेड. तो वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा. और अदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन में जो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेस बाय कंज्यूमर्स. जब हम नया घर परचेज करते हैं, कि हमारा घर, जो घर में और 2-3 रूम बनाते हैं, उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट, एडिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स.
उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ओके, इट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। आगे में हम बोलेंगे जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, जो हम incurred by the consumers on construction of new rooms or purchase of houses, it is treated as capital formation। ये ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसको हम ड्यूरेबल कंजप्शन नहीं बोलेंगे। जैसे ड्यूरेबल कंजप्शन जो है एप्लियंसेस है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लियंसेस वी आर यूजिंग इन आवर होम, जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वो सब होगा। और ये जब हम खर्च करेंगे, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम्स इन आवर हाउस और परचेज ऑफ न्यू हाउस, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये सब इन्वेस्टमेंट होगा। उसके ऊपर जो खर्च करेंगे वो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्लियर? सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन PFC। देन अनदर सेकेंड की पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट कंजप्शन गुड्स के ऊपर भी खर्च करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, you see that it is symbolically it is GFCE, government final consumption expenditure. It is incurred by general government to satisfy collective wants of the people and on various administrative services like defense, law and order, education and health, etc. Okay, it is incurred by general government. General government incurred expenditure on consumption goods to satisfy collective wants of the people and on various administrative services like defense, law and order, education and health, etc. So यहाँ पर जो जनरल गवर्नमेंट जो कंजप्शन गुड्स के ऊपर खर्च करता है, लोगों कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल, वो एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए नहीं, कलेक्टिव वांट्स, टू फुलफिल द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल। सो मेनी वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आर देयर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें भी सरकार कंजप्शन गुड्स के ऊपर खर्च करता है। उसी को हम लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। उसको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा। यहाँ पर देखो GFC में परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट, फर्स्ट पार्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप देखा होगा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस को जाओ, आपको ऑफिस स्टेशनरी मिलेगा, वो ऑफिस स्टेशनरी के ऊपर जो खर्च होता है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाता है। बहुत कुछ चीज़ इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाता है। ऑफिस स्टेशनरी में जाएगा, जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट होता है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन जो रिपेयर होता है, ओके, ऑफिस बिल्डिंग जो है रिपेयर होता है कि हम उसमें कलर देते हैं, समझ में आ रहा है, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाएगा। कभी कभी जो ऑफिशियल व्हीकल्स है उसमें हम क्या है ना, जो फ्यूल के ऊपर खर्च होगा वो सरकार खर्च करेगा, वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में हो जाएगा। सो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, ये है इंटरमीडिएट कंजप्शन। जितना गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है, कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जाओ, ऑफिशियल स्टेशनरी के ऊपर जो सरकार खर्च करता है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करता है, फ्यूल के ऊपर खर्च करता है, बेसिकली व्हीकल्स यूज्ड बाय द ऑफिसर्स फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, फ्यूल्स के ऊपर जो खर्च होता है, ओके, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाता है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाएगा, इट मीन्स आप देखो डिफेंस में, चाहे आर्मी, नेवी, एयर, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनका जो कैंटीन मेंटेन होता है, वहाँ पर उनको फूडिंग दिया जाता है, सोल्जर्स को तो उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, ओके, उनको ये सब ऊपर जो सरकार खर्च करता है वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाएगा। ओके, सो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड by the government. Direct purchases from abroad means, you know that Indian embassies, Indian military bases and Indian consulates,
लोकेटेड इन अब्रोड। मगर अब्रोड में जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा। सपोज इंडियन एम्बासी इन यूएसए, इंडियन एम्बासी इन चाइना, वो जो टेरिटरी इट मीन्स बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय इंडियन एम्बासीज बिलोंग्स टू इंडियन टेरिटरी। मगर यहाँ कहने का बात है, जो हमारा एम्बासीज है, जो हमारा मिलिट्री बेसिस है, जो हमारा कॉन्सुलेट्स है लोकेटेड इन अब्रोड, वहाँ पर वो जो सब परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्बासीज, मिलिट्री बेसिस एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रोड, वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। देन प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सीओई पेड किया जाता है। ओके, सीओई में क्या क्या दिया जाता है उनको ना, कैश, सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड में मैं बोला रेसिडेंशियल क्वार्टर, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, फ्री मेडिकल एड, सब्सिडाइज्ड मील, ये सब एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है। ओके, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सब सीओई। तो सीओई पेड बाय द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा। वो गवर्नमेंट के लिए खर्च है ना। मगर उसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज ओके सेल करते हैं, सो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर देयर, पीएसयूज, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है कि ये जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सर्विसेज इंडियन रेलवे। ओके, इंडियन रेलवे क्या सर्विस देता है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, इसमें नहीं जाएगा। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, वो उसको माइनस किया जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जस्ट यू रिमेंबर, क्लियर। तो जीएफसी में क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन। में बार बार बोला कि इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स expenditure incurred by the government on official stationaries to payment electric bill, expenditure incurred on fuel for official purpose, clear। or some residential government schools are there to maintain the canteen of government residential school, government it means purchase goods and avail services for the betterment of the children. Similarly, government hospitals में जाओ, so many instruments, medicine, okay, purchased by the government, नहीं कि वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन में जाएगा। और डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्बासीज, मिलिट्री बेसिस, हमारा जो एम्बासीज है, मिलिट्री बेसिस है, कॉन्सुलेट्स अब्रोड में है, वहाँ पर भी वो जो खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं वो भी इंक्लूड होगा। और सीओई पेड बाय द गवर्नमेंट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पेड सैलरी टू द एम्प्लॉइज, दोज पीपल वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ना, तो इट इज़ द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी इंक्लूड होगा। बट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज, उसको जो बेचता है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो कॉस्ट है वो समान है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सिंपली जीएफसी इट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। जब सरकार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर लागत लगेगा ना, कॉस्ट लगेगा ना, वही कॉस्ट, ओके, द कॉस्ट बियर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इट इज इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पब्लिक। हमारा वांट्स को पूरा करने, कलेक्टिव, टू प्रोवाइड कलेक्टिव बेनिफिट ओके ऑफ द पीपल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जीएफसी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। टू ग्रुप्स देखिए जीएफसी का,
One is expenditure for collective consumption, which benefits society as a whole or large parts of society and often known as public goods and services. Expenditure for collective consumption, which benefits society as a whole or large parts of society. जो public goods and services, those goods and services collectively satisfy the needs of the people. Example दिया है defense, justice, etc. ओके, आज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? द सेकेंड रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर फॉर इंडिविजुअल कंजप्शन. इंडिविजुअल कंजप्शन जैसे हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन एट्सेट्रा. जैसे इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ. जो हेल्थ केयर है अभी जो बीपीएल पीपल, सभी लोगों के लिए नहीं है. जो बीपीएल पीपल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पीपल, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको आयुष्मान योजना में 5 लाख तक मेडिकल बेनिफिट मिलता है. उनको हेल्थ फैसिलिटी, सबके लिए नहीं, ओनली बीपीएल पीपल. सिमिलरली इट मीन्स गवर्नमेंट का एक रेसिडेंशियल स्कूल है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी नवोदय विद्यालय. इसमें इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वन स्कूल इज देयर, एंड दिस स्कूल एडमिटिंग 80 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल और हैंडीकैप्ड. सभी को नहीं मिलेगा. वहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्कूल है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वहाँ पर 80 स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाएगा स्टैंडर्ड 6 में. क्लियर? जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज अंडर इंदिरा आवास योजना, अभी सरकार पैसा दे रहा है घर बनाने के लिए. किसको? बीपीएल लोगों को. अंडर इंदिरा आवास योजना, नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग मनी टू द बीपीएल पीपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पक्का हाउस. ये सब कॉलेक्टिव बेनिफिट्स नहीं है. एक्सपेंडिचर्स फॉर इंडिविजुअल कंजप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड. वो भी समझ में आ गया होगा. एक है कॉलेक्टिव बेनिफिट है जो डिफेंस, जस्टिस, और ये जो मैं बताया बीपीएल लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, की प्रोवाइडिंग मनी टू द बीपीएल पीपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पक्का हाउस. दैट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड. सो इसलिए इसको जीएफसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्लियर? तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएफसी इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन M&R, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए सरकार पैसा देता है, उसके लिए सेपरेट फंड आता है, वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा. तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्या होगा ना, उसमें सपोज कलर होगा कि कोई अदर बिल्डिंग का रिपेयर वर्क होगा. वो सब मेंटेनेंस मेंटेनेंस एंड रिपेयर में जो खर्च होगा वो भी जीएफसी में आएगा. इंटरमीडिएट कंजप्शन पार्ट को देखो, मैं बोला ना जीएफसी इट इज फर्स्ट वन, इट मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन पार्ट ऑफ जीएफसी इंक्लूड्स ऑफिशियल स्टेशनरी. मैं बोल चुका हूँ, जो ऑफिशियल स्टेशनरी है, फ्यूल कंजप्शन ऑफ द व्हीकल्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन बिल, ये जो सब पेमेंट होता है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ये सब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आते हैं. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो इसके ऊपर खर्च होता है वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन है. ठीक है, ये भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. ठीक, नेक्स्ट वन और एक की पॉइंट्स को जाएंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. ये थर्ड की पॉइंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. वन थिंग रिमेंबर, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट है. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. सो इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इज एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जब प्रोड्यूसर्स, जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर्स जो न्यू असेट्स खरीदते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर ने अकाउंटिंग ईयर 2019 में 3 नया मशीन खरीदा, उसका प्लांट में 3 नया रूम बनाया,
ओके, उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। 3 नया मशीन खरीदा गया, कितना मशीन था वो अलग बात है, वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना नया मशीन खरीदा गया, इट इज एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। वो आड़ कितना हुआ, जितना था ठीक है। पर्टिकुलरली 2019 अकाउंटिंग ईयर में कितना नया मशीन खरीदा गया, कितना न्यू रूम्स बनाया गया प्लांट में, वो सब है इन्वेस्टमेंट, वही कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सेम थिंग, कैपिटल फॉर्मेशन सेम आज इन्वेस्टमेंट। ओके, डेफिनेशन, इट रिफर्स टू द ग्रॉस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन होता है, सो इसमें 2 प्रकार का चीज हम लेंगे। एक है फिक्स्ड एसेट्स, जिसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक इसलिए लग रहा है विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटोरी। ओके, सो जो कैपिटल फॉर्मेशन है, हम 2 चीज लेंगे। वन है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में बोला क्या, इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड रूम्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, जो हमारा फैक्ट्रीज, फार्म्स, इंडस्ट्रीज है, उसमें जो रूम्स है प्रोडक्शन के लिए, वो भी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या है ना, दोज एसेट्स रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रूम्स ऑफ द प्लांट, ये है फिक्स्ड एसेट्स। और एक है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में 3 प्रकार का स्टॉक में जो एडिशन होता है। एक है एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना रॉ मटेरियल्स का एडिशन हुआ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, हम सब कुछ नहीं लेंगे, कितना आड़ हुआ। और सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्ध निर्माण वस्तु, कितना आड़ हुआ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। और अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स में कितना आड़ हुआ। सो 3 प्रकार का इसमें स्टॉक आता है इन्वेंटरी स्टॉक में। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। इसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन, जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो कैपिटल स्टॉक है यहाँ पर 2 प्रकार का। ओके, एक है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक ऑफ मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड रूम्स ऑफ द प्लांट्स, जिनको बार बार यूज किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, ये फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड अगेन एंड अगेन। और एक है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या हम लेंगे, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो चेंज होगा पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, जितना आड़ होगा। चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स। क्लियर। तो इट रिफर्स टू द ग्रॉस एडिशन। क्योंकि ग्रॉस एडिशन क्यों लेते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। जो फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें 2 प्रकार का है ना स्टॉक, एक फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है और एक इन्वेंटरी स्टॉक है। इन्वेंटरी स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि इन्वेंटरी स्टॉक में क्या हुआ, मैं क्या बोला ना, इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन ओनली फिक्स्ड एसेट्स में है। डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जब फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम, उसका जो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू तो रिड्यूस होगा। जितना रिड्यूस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ओके, सो ओनली इसमें जो 2 प्रकार का स्टॉक होता है, जो फिक्स्ड स्टॉक है, जो फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इट रिफर्स टू द ग्रॉस एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो जीडीसीएफ देखो, उसका 2 पार्ट में जो डिस्कस किया वही लिखा। इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एडिशन और क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। मैं बोला कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट। इट इज एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर में जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था, उसमें कितना फिक्स्ड एसेट्स ऐड हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सपोज 2019 बिगिनिंग में हमारा एक प्रोड्यूसर के पास 5 मशीन था।
2019 का जब एंड हुआ उसके पास 8 मशीन है। सो 2019 में वो कितना नया मशीन के ऊपर इन्वेस्ट किया, कितना नया मशीन ऐड हुआ, जो एग्जिस्टिंग था वो 5 मशीन्स, जो एग्जिस्टिंग था वो 5 मशीन्स था। अभी एंड में कितना है 2019, एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 हमको कितना मिला मशीन्स, 8 मशीन्स। तो 3 मशीन के ऊपर प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया, तो वही 3 नया मशीन के ऊपर जो इन्वेस्ट हुआ उसको ही हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF। भाई कंफ्यूजन नहीं होना है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो दो प्रकार का, एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है और एक इन्वेंटरी स्टॉक है। तो फर्स्ट वन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है। एक्चुअली जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार का होता है उसमें देखो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, बेसिकली फार्म सेक्टर, you know 4 sectors are there, हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। मगर यहाँ पर हम डोमेस्टिक लगाते हैं तो 3 सेक्टर्स हम लेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये है जो बिजनेस आता है वो फार्म सेक्टर हम लिया। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस पर्सनल्स एक्चुअली दे नीड फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड दे नीड इट मीन्स एक्स्ट्रा रूम्स, ओके, फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्शन। तो वो है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करता है, कैसे, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एजुकेशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये सब जो सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स फॉर कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल, वो सब आएगा। मैं जैसे बोला रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, ओके, मेट्रो स्टेशन, ये एजुकेशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ओके, ये सब। नेक्स्ट ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में हम जो हाउस होल्ड सेक्टर, हम जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, परचेज ऑफ न्यू हाउसेस बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, ओके, वो भी हमारे लिए एसेट है ना। हमारा घर, हमारा जब घर बनाएंगे हम और जब नया घर हम खरीदेंगे, अभी रियल एस्टेट आ रहा है ना, अपार्टमेंट्स, जो पैसा इन्वेस्ट करके हम खरीद रहे हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है, वो है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। सो 3 प्रकार का जो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स है, एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। आगे मैं और थोड़ा बताऊंगा। और सेकेंड है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया और एक है चेंज इन स्टॉक। मैं बोला चेंज इन स्टॉक को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स। पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमारा रॉ मटेरियल्स में कितना चेंज हुआ, कि अनसोल्ड गुड्स में कितना चेंज हुआ और सेमी फिनिश्ड गुड्स में जितना चेंज हुआ। जो चेंज के ऊपर जो इन्वेस्ट होता है, जो चेंज के ऊपर हम जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, वही है उसमें आएगा, वो भी स्टॉक में जाता है। तो स्टॉक में 2 प्रकार का चीज जाता है, एक फिक्स्ड एसेट्स आता है और एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक आता है। ओके, 2 प्रकार समझ में आया। तो GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है, ओके, और चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये डोमेस्टिक लाइक विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए क्लियर। कंपोनेंट्स ऑफ GDCF आप देख लो, कंपोनेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में बोला 2 कंपोनेंट्स है, एक है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और एक है इन्वेंटरी स्टॉक। तो कंपोनेंट्स ऑफ GDCF फर्स्ट आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैं वही बोला, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन सेम है। इसको सिंबलिकली GDFCF बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक, पॉपुलरली जस्ट यू रिमेंबर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF। इसमें इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, में बार बार बोला, जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ओके, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में अभी बोला, जो बिजनेस सेक्टर वो जो पैसा खर्च करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स और इट मीन्स रूम्स,
ओके, जो बिजनेस सेक्टर है वो कुछ इट मीन्स दे वांट टू मेक एडिशन टू द एग्जिस्टिंग capital stock. They want to purchase new machines, tools, equipments. Again, they want to add some new rooms. Okay, so it is defined as expenditure on fixed assets like machinery, equipment, factory buildings, etc. तो यहाँ पर जो मशीन तो है, मगर जो नया मशीन, जो अकाउंटिंग ईयर में कितना नया मशीन खरीदा गया, कितना न्यू इक्विपमेंट्स खरीदा गया, फैक्ट्री बिल्डिंग में कितना न्यू रूम बनाया गया, वो सब आएगा. सिमिलरली ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट कितना खर्च किया, जो नया रोड बनाया, कि कहाँ पर नया डैम बनाया, कहाँ पर नया ब्रिज बनाया, कहाँ पर न्यू स्कूल बिल्डिंग बनाया गया, न्यू हॉस्पिटल बनाया गया पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, वो है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. अगेन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो न्यू रोड्स, न्यू डैम्स, न्यू ब्रिजेस, न्यू स्कूल्स, न्यू हॉस्पिटल्स, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. देन नेक्स्ट वन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. ये जो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, हम एक नया फ्लैट खरीदा, कि एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, कि एक नया रेसिडेंशियल घर बनाया, हाउस बनाया, ये सब एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्लैट्स एंड रेसिडेंशियल हाउसेस बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. हो गया फिक्स्ड एसेट्स. तो ये है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज GDFCF. नेक्स्ट है इट इज चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. मैं बोल चुका हूँ, इट इज ए चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. चेंज इन स्टॉक, कितना चेंज हुआ, जो स्टॉक था, तो इसलिए हम चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. चेंज इन स्टॉक मेरा प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ, वैल्यू एडेड मेथड में. चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो जितना चेंज आया उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लेना है. अनसोल्ड गुड जो बेचा नहीं गया 2019 में जो नहीं बेचा गया वो उसको स्टॉक किया गया. तो जितना अनसोल्ड गुड्स नहीं बेचा गया 2019 में, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं. ओके, सो ओनली चेंज को लेना है. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर. ओपनिंग स्टॉक जो बिगिनिंग मीन्स इट इज April 1 एंड एंड ऑफ द ईयर मीन्स March 31. तो फाइनेंशियल ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है April 1, एंड होता है March 31. It is a change in stock of finished unsold goods, semi finished goods and raw materials lying with the producers during an accounting year. So उसका दो पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आप दोनों को ऐड करना है. एक है GDFCF, इसलिए पहले से मैं उसको ऐड कर दिया. यहाँ पर देखो, ये एक्चुअल फॉर्मूला है. GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर प्लस चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करना है तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट, NDCF क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है. जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें दो प्रकार का कैपिटल स्टॉक होता है. एक फिक्स्ड एसेट्स होता है, एक इन्वेंटरी स्टॉक है. सो उसमें एक्चुअली डेप्रिसिएशन किस में है, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन है, इन्वेंटरी स्टॉक में नहीं है. तो उससे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आएगा. भाई नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक्स. इसमें डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन था वो डेप्रिसिएशन को हम हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेम थिंग लिख दिया, इट इज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. NDCF GDCF माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. और इसमें दो पार्ट्स था ना, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसी को मैं थोड़ा चेंज देखो. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो प्रकार का स्टॉक था, एक है फिक्स्ड एसेट्स का और एक है इन्वेंटरी. एक्चुअली जो डेप्रिसिएशन है किसमें है, वो फिक्स्ड एसेट्स में, उसी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF माइनस डेप्रिसिएशन. एज यूजुअल इन्वेंटरी स्टॉक और चेंज इन स्टॉक रहेगा, क्योंकि GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. जो GDFCF से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि उसी में जो फिक्स्ड एसेट्स है GDFCF नहीं कि फिक्स्ड एसेट से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. इन्वेंटरी स्टॉक में जो है वो है स्टॉक ऑफ चेंज इन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स
एंड रॉ मटेरियल्स उसमें डिप्रिसिएशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगेन यू सी GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर GDFCF प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं GDCF। NDCF इट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये जो ग्रॉस है उसमें नेट कर देंगे, डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो अलग तरीके से हम NDCF क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड। सपोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और चेंज इन स्टॉक दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको GDCF मिलेगा, याद रखो। फिर NDCF क्या है ना, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल्स में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और चेंज इन स्टॉक दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो NDCF मिलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जो चेंज इन स्टॉक है, मैं बार बार बोला, जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी स्टॉक नहीं देगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि चेंज वही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो न्यूमेरिकल में चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो आपको सर्च करना है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है, दोनों का डिफरेंस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, वो हो जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। जो इंक्रीज इन स्टॉक है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में देता है इंक्रीज इन स्टॉक और नेट एडिशन टू स्टॉक्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इंक्रीज इन स्टॉक और नेट एडिशन टू स्टॉक्स एक्चुअली जब क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा होता है। तो न्यूमेरिकल्स में इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, इफ इंक्रीज इन स्टॉक इज गिवन और नेट एडिशन टू स्टॉक इज गिवन, देन इट मस्ट बी एडेड। डिक्रीज इन स्टॉक जस्ट रिवर्स ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक और रिडक्शन टू स्टॉक्स, जिसके क्लोजिंग स्टॉक लेस देन ओपनिंग स्टॉक। न्यूमेरिकल्स में डिक्रीज इन स्टॉक दिया है कि रिडक्शन टू स्टॉक्स दिया है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, चेंज इन स्टॉक के जगह सपोज डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो दोनों ऐड होता है, एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और एक इन्वेंटरी स्टॉक। सो फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, वो सेपरेटली क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक दिया है प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है माइनस डिक्रीज इन स्टॉक। तो डिक्रीज इन स्टॉक दिया है मीन्स GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF माइनस डिक्रीज इन स्टॉक। डेप्रिसिएशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो आपको GDCF माइनस NDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आएगा, GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक। NDCF में क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स था, जो फर्स्ट जो पार्ट स्टॉक था, जो फर्स्ट पार्ट था, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वहाँ पर ग्रॉस था, यहाँ पर नेट आएगा जो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, और चेंज इन स्टॉक का यूजुअल रहेगा। तो GDCF इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, NDCF नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन अल्टरनेट नेम है CFC कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे ना, GDCF माइनस NDCF, दोनों को माइनस करने से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और भी डेप्रिसिएशन मिल सकता है ऐसे, जैसे क्वेश्चन में मैं बार बार बोला, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ये दिया है, सपोज न्यूमेरिकल्स में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, दोनों दिया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है। मैं बोला था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 3 प्रकार का है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, मालूम है ना। उसमें ग्रॉस मीन्स आया, तीनों में डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, मगर NDCF में डेप्रिसिएशन नहीं। वो जो NDCF का जो पार्ट्स है वो आएगा कैसे ना, नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, यानी डेप्रिसिएशन नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में GDFCF और NDFCF ये देता है, तो दोनों को माइनस करने से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और एक देखो, ये भी न्यूमेरिकल्स में दिया है, NDFCF दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ओके, आपको GDCF निकालना है, NDFCF दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, GDCF मिल जाएगा,
क्योंकि एनडीएफसीएफ जो है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड करने से क्या होगा, जो ब्रैकेट में है वो हमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक पार्ट मिल गया, और चेंज इन स्टॉक बाय इन्वेंटरी स्टॉक ऐड कर देंगे तो जीडीसीएफ मिल गया। तो इसे डिफरेंट वेज में देता है, और मैं अच्छे से आपको क्लियर किया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आगे वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, उस समय फिर देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स एक अनदर मीन्स की पॉइंट, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट्स बेसिकली सेलिंग डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स। हमारा डोमेस्टिक गुड्स को हम जब फॉरेन मार्केट्स में बेचेंगे वो एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स क्या है ना, परचेज फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। जब हम फॉरेन गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेंगे वो है इंपोर्ट्स। ओके, जब हमारा गुड हम फॉरेन मार्केट्स में बेचेंगे वो एक्सपोर्ट्स है। जब हम फॉरेन गुड्स को हमारा डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेंगे उसको इंपोर्ट्स बोलेंगे। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और न्यूमेरिकल में नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो उसको ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बट नेट इंपोर्ट्स क्या है ना, देखो नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का सिंबल एक्स है, कैपिटल एक्स, इंपोर्ट्स का एम है, कैपिटल एम। नेट इंपोर्ट्स इट इज इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, बट नेट इंपोर्ट्स इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। तो सभी समय न्यूमेरिकल में याद रखो नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होगा। नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो ऐड होगा, नेट इंपोर्ट्स दिया है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? अभी हम कैलकुलेशन को जाएंगे, डिफरेंट स्टेप्स को, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड और डिस्पोजिशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। सब की पॉइंट्स हम बोल दिया, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें दो पार्ट्स है, एक है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी स्टॉक, और फोर्थ है जो नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तब हम उसको ऐड करेंगे, नेट इंपोर्ट्स दिया है उसको माइनस करेंगे, और सेपरेटली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दिया है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे। देखो कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप में हमको जीडीपी एमपी निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप इज जीडीपी एमपी। उसमें क्या क्या ऐड करेंगे ना, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो चार कंपोनेंट्स इसीलिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो फर्स्ट स्टेप में हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को निकाल दिया तो और प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट यू कैलकुलेट दिस वन, देन अदर स्टेप्स वुड बी इजी वन। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों को मैं डिस्कस करता हूँ, चारों को ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी। स्टेप टू में एनडीपीएमपी, एनडीपी ग्रॉस टू नेट ओनली, ग्रॉस टू नेट, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का अल्टरनेट नेम यहाँ पर दे दिया सीएफसी और आरएफसी। सीएफसी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आरएफसी रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जब फर्स्ट स्टेप है जीडीपीएमपी, देन हम जब एनडीपीएमपी निकालेंगे ओनली ग्रॉस टू नेट आएंगे, तब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जीडीपीएमपी से। मैं बोल चुका हूँ, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दिया ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे एनडीपीएफसी, जो एनडीपीएमपी था अभी हम आएंगे एनडीपीएफसी, यही डोमेस्टिक इनकम है, एमपी टू एफसी ओनली। सेकंड स्टेप में देखो एनडीपीएमपी, थर्ड स्टेप में हमको निकालना है एनडीपीएफसी। तो क्या चेंज हमको दिखाई दे रहा है, एमपी टू एफसी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, यही है डोमेस्टिक इनकम का सिंबल। इसमें क्या करेंगे हम, मैं बोल चुका हूँ एमपी टू एफसी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, एनआईटी दिया है न्यूमेरिकल में, तो डायरेक्टली हम इसको माइनस करेंगे। नहीं दिया है, सेपरेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी। मैं बार बोला इनडायरेक्ट टैक्स सेम थिंग, जीएसटी सेम थिंग, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सेम थिंग, टैक्स ऑन प्रोडक्शन सेम थिंग है, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स सब है, सेम थिंग है। तो एनआईटी जब एमपी टू एफसी आएंगे तो एनआईटी को माइनस करेंगे। एनआईटी नहीं दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे। वही लिख दिया ब्रैकेट में, एमपी टू एफसी, एनआईटी सब्ट्रैक्टेड। इफ एनआईटी इज नॉट गिवन देन आईटी सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज एडेड। इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टरनेट नेम्स में बोला
टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अभी एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम आया है ना, जीएसटी। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सेम थिंग है। सब्सिडीज है फाइनेंशियल असिस्टेंस, you know government providing financial assistance to small enterprises and farmers for promoting production। सरकार आर्थिक मदद करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्मॉल एंटरप्राइजेस को और स्मॉल फार्मर्स को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वही सब्सिडीज है। सब्सिडीज की जगह फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। ओके, तो अभी हमको डोमेस्टिक इनकम मिल गया। फिर हम नेशनल इनकम को जाएंगे। मैं बार बार बोल चुका हूँ, जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल को जाएंगे तब हमको NFIA ढूंढना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, उसको माइनस करेंगे। तो वही है, देखो नेक्स्ट लास्ट स्टेप नेशनल इनकम, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तब हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना है, डोमेस्टिक टू नेशनल। इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, नेट टू दिया है, नेट फ्रॉम ऐड होगा, नेट टू दिया है तो इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, thank you. In the next part, I will discuss the numericals, solving the numericals of national income through expenditure method. Okay, जो अभी फार्मूला बताया, की पॉइंट्स बताया, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस, क्या क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर मेथड। मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा वीडियो लाऊंगा आगे में, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है असित सरीकोमनिया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।